नेक्स्ट 10 years मुझे लगता है ये जो 64% है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ है. विदाउट कमिटमेंट यू कैनॉट स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैनॉट फिनिश. आराम में आसाइश, और जब उस आराम और आसाइश की दुनिया को आप देखते हैं तो आप समझते बस यही दुनिया. विद द इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, those who think they are good content writers or creative graphic designers or state of art web developers, you could be creative, you could be a problem solver. Who knows where do you stand 5 years from now? The problems of the repercussions of AI are already beginning to show up. तो मुझे ऐसा लगता है कि घर से निकलो भाई, सीखो दुनिया में क्या हो रहा है, समझो एक दूसरे से, को क्रिएटिव चीजें सोचो, कुछ स्टार्टअप्स निकालो. क्यों जो है ना वो रोबोट्स की तरह जिंदगी गुजार रहे हो, वेयर machines are learning and humans are getting hooked. What humans can do is extraordinary. What humans do is pretty much disappointing. Today we have a very special guest in our studio, Mr. Hasham Sarwar. Assalamu alaikum, sir. Thank you for gracing us with your presence. Sir, इतनी सारे hats पहने हुए हैं आपने, which becomes very difficult for one of us to distinguish you कि आपकी जो आपके skills एक तरफ और आपका जो एक community building और जो एक आपने एक like-minded people और एक like-minded tribe जो आपने create किया हुआ है. So, what exactly pushed you to that inspiration to bring up to that project? हर बिगिनर के लिए फ्यूचर फोर्सी करना बहुत जरूरी है. एंड आई एक्चुअली बिगन बाय कीपिंग द एंड इन माइंड. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू व्हेन आई sort of like hit the mid-age crisis. So halfway through my service industry experience as a freelancer, as one of the biggest freelancing icon in the country, I was literally about to hit 30 when I was an internet millionaire, and that is USD, right? अच्छा, अब वहाँ से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो absolutely planned थी to the point कि I wanted to do something for the masses under the umbrella of paying back to the community. So that was the motive. How would I do it back then was the biggest question mark, which eventually, helped me navigate the processes, and those processes, once I, jumped over all the stumbling blocks, played a very instrumental role in orchestrating the way towards paying back to the community. So in the shortest of the explanation, I wanted to do it. How I would do it is the process, and I, sort of like fine-tune the process as the days and the months and the years weared on. सर, एक तो आपने बात तो अच्छी कर दी, लेकिन आपने डरा भी काफी दिया अगर देखा है तो. इफ यू जस्ट सेड कि अभी ना कि दैट एट द एज लाइक नियर 30 यू गॉट द मिड लाइफ क्राइसिस, ठीक है, और तुसी कह रहे हो कि तुसी यूएसडी में कमा रहे हो, तो सर डराओ तो नहीं अभी. नहीं, वो तो नहीं होता. क्राइसिस यही हो के फाइनेंशियल क्राइसिस हो. तो सर अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं, मिड एज क्राइसिस इज नॉट जस्ट द फाइनेंशियल क्राइसिस. It could be a thought process. It could be you envisioning something and you being unable to pull it off. So मैंने जो process का जो procedure है ना, वो procedural जो method है वो आपके गोश गुजार किया. That is navigating and going through the whole system. उसमें stumbling blocks भी थे. उसमें some days were good, some days were not so good. Bad is not a word in my dictionary. What matters the most is I wanted to get into the eyes of the public. I wanted to pay back to the community, and somehow गुजरते गुजरते पहुंच ही गए पैसे पानी की तरह. सर इतने कमाएंगे तो वापस तो देंगे ही ना सर. आगे सर ऐसे बहुत सारे लोग कमाते हैं, अपनी जात के लिए जिंदा रहते हैं, अपनी जात के लिए ही मर जाते हैं. But I still really appreciate the idea. Since we're talking about the midlife crisis, वाली एक जो बात हो रही है, I totally agree with the point कि yes, it cannot just be a crisis of work or career का. It can be emotional, it can be mental, and pardon me अगर मुझे सिर्फ ऐसा एक खुद की भी है कि sometimes you do understand that you have the potential to do so or something, and you've
you are the perfect person to do that. लेकिन आपको पता होता है कि आपने full potential इस्तेमाल शायद नहीं कर रहे हैं. That can be one of the crises as well. So how did in that crisis the idea of work chest जो आया था वो उसी किसी That is more on a commercial, it's a more of a commercial element and factor in DigiSkills in order to understand work chest. So these are two different things. DigiSkills is a training portal and federal government program that aims to teach kids emerging and training skills. I have taught so far around 3.7 million Pakistani students living in country as well as expat Pakistanis free of cost. वो free में पढ़ते हैं. It's a federal government initiative. बड़ा नेक काम किया जिसने भी सोचा. Problem was we were training and educating folks out there, but the international marketplaces for that skilled resource did not, suffice. कम थी वो. So when you talk about 3.7 million so far, और फिर आगे और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यूनिवर्सिटीज आर नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, न्यू इनिशिएटिव्स बीइंग रोल्ड आउट एंड अनवेल्ड. तो स्किल डेवलपमेंट पे तो हर दौर पे नारा लग रहा है पिछले 10 साल से. प्रॉब्लम इज हाउ डू यू अकोमोडेट ऑल दोज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस कम पड़ गई थी. So I thought, how about having our made in Pakistan, a local freelance marketplace, जहाँ पे ये जितने भी trained और skilled resource हैं, इनको inject किया जाए and give them a healthy environment, create an ecosystem where local buyers collab with local sellers. And in the process, when the organic outreach exponentially grows, international buyers can also come in. And they can hire our local resource. So that was the whole motive of Work Chest. So I think that's a very amazing one, because the one point which मैंने बहुत खास तौर पे pick किया है, it was about the students and universities not being apt enough कि वो इस चीज़ को अपने curriculum के अंदर involve कर सकें. So that is, do you really think that even in the one point you actually mentioned, थोड़ा सा मुझे आ रहा है, even if 3.7 million जो हमारे जो एक कम्युनिटी बिल्ट हुई है, you said it did not suffice internationally. वहाँ पे बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं. अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है, जितनी भी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, इतना ज्यादा नंबर तो नहीं बन जा सकता था ना. So there had to be another option. And problems require, as an entrepreneur, problems require solutions. And once you come up with the epic solutions, it automatically means the commercial element would fit in and perfectly fit in. So मुझे ये लगता था कि इतने ज्यादा लोग हैं, इनको कहाँ लेके जाओगे? मार्केट प्लेसेस तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे. So why not have let's create a local ecosystem. Local sellers hunt for the local buyers, and they hunt for the projects. Buyers look out for the skilled resource within the country. कोलैबोरेशन करा दो, टीम अप करा दो. सर एक अब वी हैव बीन हियरिंग लिटिल लाइक सिंस फ्रीलांसिंग की थोड़ी सी बात हो रही है, एंड आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी एज वेल. आई थिंक इंडिया की इकोनॉमी में इंडिया इज द बिगेस्ट फ्रीलांसर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट. सो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन द कम्युनिटी ऑफ फ्रीलांस ग्लोबली? सो वी आर द 4th fastest growing freelance country. यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि हर एलिमेंट को अगर आप डिसाइफर करें, एक्सप्लोर करें, तो व्हाट यू लर्न इज कि एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन स्किल्स. अभी तो यूनिवर्सिटीज वगैरह एकेडेमिया के अंदर HSE के करिकुलम में नहीं है. तो वो शाम का प्रोग्राम चल रहा है, यूथ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, या ई रोजगार का वो PITV का प्रोग्राम पंजाब भर में, दुशल आगे पीछे हर जगह पे सिंध में. इतना स्किल्ड रिसोर्स कहीं तो यूज होना था ना. इसके लिए हमें चैनलाइज करने की जरूरत थी, लोकल इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत थी. सो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो मैंने कुछ मुख्तलिफ नहीं किया जो जैक मा ने 1996 में अली बाबा के लिए कुछ मुख्तलिफ नहीं किया. इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, चैनलाइज तो करना है ना.
कंसिडरिंग कि अगर आपके बाहर के पोर्टल्स बंद हुए थे, कुछ तो करना था। मतलब जितनी देर में वो पाकिस्तानियों को बाहर करेंगे, कम से कम अपना लोकल इकोसिस्टम तो बन जाए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इसको ऐसे समझे। सर, वी हैव बीन हैविंग लिटिल विस्पर्स अबाउट आपका जो नया प्रोजेक्ट है इनोवेस्टा, उसके बारे में थोड़ा सा हमें पहले गाइड भी करें। वी हैव बीन हियरिंग अ लॉट अबाउट इट एंड इट्स अ वेरी कोहैबिटेबल वर्किंग इन वर्क प्लेस, एंड उसके बाद हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क? So Innovista is a public-private partnership, or I look after the interest of community as a community builder, where someone at the helm of affairs, I am being projected as their front face. Idea is to have a state-of-art co-working spaces, because before Innovista, I led a campaign named #Let's Connect. Let's connect. Abhi Let's Connect, after having completed century of events, which is 100 plus events as of date, I sort of like encouraged folks to go out of their homes, sit at one place, talk to one another, and when people talk, they benefit, they come up with amazing ideas. So there's a Japanese proverb, बंदों को ना 5-6 को एक कमरे में बंद कर दो, थोड़े देर बाद, चंद घंटे बाद आपको बेहतरीन आइडियाज नजर आ जाए। अब इनके पास चॉइस ही कोई नहीं है ना, बातें करने के अलावा क्या करेंगे, बातें करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, ये तो सही है, समथिंग एक्साइटिंग, ठीक है ना। सो इसी तरीके से लेट्स कनेक्ट इनिशिएटिव वाज टू इंकरेज लाइक माइंडेड पीपल टू कम आउट ऑफ देयर होम्स। वो लाइक माइंडेड होंगे तो घर से निकले, वरना तो नहीं निकले। सो कोई बैठा होता ढाबे पे, कोई बैठा होता यूनिवर्सिटी के कैंटीन में मिसाल के तौर पे, कोई बैठा हुआ था किसी रेस्टोरेंट में, ग्रुप ऑफ 5-6 एंड दैट्स अबाउट इट। एंड देन आई बिगन टू रियलाइज इसको चैनलाइज भी नहीं होना चाहिए। तो वहां पे फिर the idea of co-working space was born. It's a symbiotic relationship भी फील होता है कि सारे एक दूसरे को इन अ वे प्लेटोनिकली हेल्प कर रहे होते हैं। देखिए, पाकिस्तान ग्रो तभी करेगा जब people come out of their silos, individual capacity में you are unable to pull off a miracle. मैंने ये गलती की है for good on 4 decades. आप अकेले रह के सारे काम नहीं कर सकते as a service provider and not as a community builder. दूसरा, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो स्केलिंग अप के साथ डायरेक्टली मशरूत है। मैं इनडायरेक्टली का भी वर्ड यूज नहीं कर रहा, डायरेक्टली मशरूत है। सो व्हेन यू आर एबल टू स्केल अप, यू आर एबल टू फॉर्म पार्टनरशिप्स, you are able to create startups, you are able to create software houses, you are able to create product ideas that are exportable to the world. That is where the money is. Gig economy में individual capacity में पैसा नहीं है, वो सिर्फ इंडिविजुअल ही कमा रहा है ना, उसकी कैपेसिटी इतनी है, उसकी बैंडविड्थ ही इतनी है। दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड। यहाँ पे जो स्टम्बलिंग ब्लॉक जो मुझे फेस हो रहा था, जो दिक्कतें थी, दुश्वारियां थी रास्ते में, ये लोग खुश हैं इंडिविजुअल गिग में। हाँ, एग्जैक्टली। ये अकेले बैठे हैं, खुश है। अच्छा, इसका प्रॉब्लम मुझे क्या नजर आया, एक तो स्केल अप नहीं कर सकते, और दूसरा उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आज कैमरे में बता रहा हूँ, मैंने बड़ी फेस की है। ये नाते दोस्ते नहीं है, ये बाहर नहीं निकलते, ये मसाल के तौर पे अच्छा सजते संवरते नहीं है। क्यों? बिकॉज इनकी जो पब्लिक गैदरिंग का जो एलिमेंट था वो तो डिस्कनेक्ट हो गया जी। ये पैसे कमाने के चक्करों में पड़ गए। अब इनको समझ लगी कि अच्छा हाँ, मैं 200 कमाऊं या 2000 कमाऊं या व्हाटएवर इट इज, भाई मैं खुश हूं। उसने पैसा कमाया, अपने घर में लगाया सोलर से उसने गर्मियों में चलाया, हीटर सर्दियों में चलाया, एसी, उसके पास डॉलर टू रुपी कन्वर्जन में इतने पैसे आ गए कि उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके बाकी कार्बन फुटप्रिंट उस गरीब का नहीं है। वो सड़क पे जाएगा तो धुआं फूंकेगा ना, गाड़ी चलाएगा या बाइक चलाएगा, तो वो खुश हो गया अपनी जिंदगी। ये सारे अपने घरों में बंद हो गए, और कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि तो गड़बड़ हो गई है। अब स्केल अप कैसे करें? तो स्केल अप के लिए लेट्स कनेक्ट इनिशिएटिव, एंड दैट ट्रांसलेटेड इनटू इनोवेस्टा की कोवर्किंग स्पेसेस। सिट अंडर वन रूफ, वी आर गिविंग यू स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, ठंडा एसी, गर्म हीटर, सर्दियों में, या एसी गर्मियों में। like-minded people, when they sit together, they will come up with something initiative. पाकिस्तान में जिस वक्त स्टार्टअप्स निकलना शुरू हो गए, और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जिनकी मेंटरिंग भी होगी, जो हम उधर प्रोवाइड करने के लिए कोशा हैं, जिनकी ट्रेनिंग भी होगी, जो हम ट्रेनिंग देंगे। मिसाल के तौर पे learneasy.pk
एक ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जी, जहां पे हम अभी इनिशियली 18 एंड ग्रोइंग फ्री स्किल सिखा रहे हैं, स्टार्टिंग विद फ्रीलांसिंग, सो यू लर्न हाउ टू सेल. Then there's digital marketing. You can offer your agency services, and then there's a huge range of emerging and trending skills. Game development, talk about blockchain, talk about DevOps, cyber security. So ये ऐसी चीजें थी जिसके लिए हमें अपने यूथ को तैयार करना था. That is where Innovista Plus है. So it's in a way हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आता है और सबसे बड़ा बर्डन जो इस टाइम पे वो है वो यूथ के ऊपर ही है in a way. और अगर वो बर्डन ले भी नहीं. I totally agree because gig वाली इकोनॉमी आती फिर we have a big issue about that as well. You have a lot of like जो हमने वीडियोस आपकी हमने देखी हैं बहुत सारी, उसमें आपने जो डिजिटल प्रेजेंस की बात की हुई है और बाकी चीजें की हुई हैं. There are some hindrances as well sometimes जो आपने बंद की बात की थी कि आपने आपको बंद कर दिया है. I really सब slightly feel एक तो कोविड का इसमें काफी कमाल है. और दूसरा जब बंद हो गए हैं तो आई थिंक एक सोशल इनसिक्योरिटी टू पुट योरसेल्फ आउट देयर थोड़ा सा वो नहीं होता. आराम है, आसाइश है, और जब उस आराम और आसाइश की दुनिया को आप देखते हैं तो आप समझते बस यही दुनिया है. Whereas I genuinely believe skills keep on changing. चलो टाइम अगर स्पैन लगा दूं ना या टाइम कैप लगा दूं 5 साल, with the emergence of artificial intelligence, those who think they are good content writers or a creative graphic designers or a state of art web developers, you could be creative, you could be a problem solver, who knows where do you stand 5 years from now. The problems of the repercussions of AI are already beginning to show up and many ठीक है ना in many skill sets. तो मुझे ऐसा लगता है कि घर से निकलो भाई, सीखो दुनिया में क्या हो रहा है, समझो एक दूसरे से, को क्रिएटिव चीजें सोचो, कुछ स्टार्टअप्स निकालो. अच्छा चलो अपनी स्किल से रिलेटेड इनकैशमेंट तभी होगी ना बैंक से जब आपके पास चेक होगा, प्रेजेंट करोगे तो आपको उसके बदले में पैसे देगा. तो आपकी इनकैशमेंट क्या होगी कि आज आप स्किल दोगे तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे. अच्छा वो स्किल कल इनवैलिड होगी, यानी कि उस चेक की जो डेट है वो एक्सपायरी हो चुकी है. तो मुझे इस तरह समझाने में जरा आसानी होती है लोगों को कि प्लीज समझिए इसकी बस शेल्फ लाइफ है. स्किल सारी उम्र ताहियात नहीं रहेगी. आज से 15 साल पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंसान मशीन के गाड़ियों के पुर्जे खुद जोड़ते थे. ठीक है, अभी तो रोबोट का. अमेज़न में तो सारे के सारे रोबोट्स हैं जो वो पूरा सामान आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, डिलीवरी हो रहा है. सो मेरा पॉइंट ये है कि लोगों को घर से निकलना है, वरना ये गिग इकोनॉमी अगर इसका शेल्फ लाइफ कम हुआ तो आप खसारे में ना रह जाए. सर पाकिस्तान के ऊपर लेकर आए एंड वी हैव अंडरस्टूड एक पॉइंट समहाउ हमने एस्टैब्लिश कर लिया है दैट यूथ ऑफ पाकिस्तान हैव बीन वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स गिग इकोनॉमी, और वो कोलैबोरेटिव या एक जैसे कहते हैं ना एक एज अ कम्युनिटी समहाउ नहीं सोचते कि मे बी सारे मिलकर अगर करेंगे तो इन अ वे दैट वुड बी हेल्पिंग द कंट्री एज वेल एज देमसेल्व्स. वो एक तो इस थिंकिंग को समहाउ चेंज करने के लिए व्हाट वेज उनको कमरे से बाहर से निकालना है. इसलिए ना co-working spaces is the first thing, the tip of the pyramid where they can actually they can see कि क्या हो सकता है नीचे, तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा उस पिरामिड के अंदर, वो तो बात की बात है. तो इंसेंटिव क्या होगा उसका? बहुत ज्यादा इंसेंटिव है. मिसाल के तौर पर मैंने इनको कहा 2 महीने बैठे फ्री में, जरा सीखें. फिर ये हो सकता, तो फिर आपको चस्का चढ़ेगा, फिर आपको आदत हो जाएगी. ही इज गुड, ही इज गुड, ही इज गुड, ही इज गुड. कैमरे वाला आपको बता दिया 4 बंदे इस कमरे में, तो एंड देन शी इज एक्सीलेंट to make it 5. So उसमें ये होगा and take it as a compliment. इसमें ये होगा कि जब लोग बात करेंगे तो आप सीखेंगे एक दूसरे से. So automatically you will get habit. एक फॉर्म करने में कितना वक्त लगता है? 66 days. बस 2 महीने. There you go. तो 2 महीने इसलिए हमारे पास आते हैं. सर जान देखिए, there must be people who opposed you or definite people who would have opposed you, और या आपके आइडियाज को या इस चीज को थोड़ा सा डिसरिगार्ड करने की कोशिश की होगी. सो हाउ एग्जैक्टली यू टैकल दैट इशू देन? नहीं किया. Mind over matter. I don't mind because they don't matter.
That's so well. बोलते रहे मेरी तरफ से मैं ये करूँ. That's a अब well. वो है इतने से हमारा जरा ट्राइब बहुत बड़ा हो गया. वो बोलते रहे जो भी है. मुझे जो लगता है गलती कहाँ है वो ठीक करनी है मुझे, उसकी मैं इस्लाह कर रहा हूँ. इनोवेस्टा जिंदाबाद. अल्लाह करे इनिशिएटिव इतना बड़ा चले पूरे पाकिस्तान भर में कि लोगों को एक जगह पे एक छत तले बैठने का मौका मिले. गलती क्या हो गई है, लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते. एक ये भी बड़ा मसला है. ये है वाकई है. ठीक है ना. और दूसरा, लोग अपनी स्किल डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे. चलो स्किल डेवलपमेंट काम करा देते हैं मुफ्ती मुफ्तार जैसा भी. पर्सनल डेवलपमेंट के तो पैसा खर्च करो ना. एक कॉस्ट है घर से निकलने की, बैठने की, उस पर तो खर्चा करो. कौन सी दुनिया में आप लोग लेना शुरू किए? सॉर्ट ऑफ लाइक वो मेटा की दुनिया के उधर ही बिल्डिंग है, उधर ही सब कुछ है. तो इसका मतलब बस फिर वो माजरत के साथ हिपीज बन जाए, ये तो गलत हो रहा है. तो मैं उसको ठीक कर रहा हूँ. तो गलतियां मुझे अपनी पता है क्योंकि गिग इकॉनमी एकदम कोविड के बाद ड्यूरिंग दैट टाइम एकदम से वाकई में बूस्ट हुई थी. इसका दूसरी साइड भी तो देखो. जॉब्स क्रिएट करना मेरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. मैं इस पे आना चाह रही हूँ लेकिन ये थोड़ा सेंसिटिव ना होता है, इसलिए मैं परेशान भी हो रही हूँ. देखिए क्योंकि द थिंग आप जो कर रहे हैं ना इस टाइम पे, नहीं माय पॉइंट, जिम्मेदारी है ना. जिम्मेदारी का छोड़ के द थिंग यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाय गिविंग देम द स्किल. आपको स्किल लेबर आपने दे तो दिया, अब उस स्किल लेबर को किसी जगह लगाओ तो सही. अगर वो यहाँ तक भी प्रोसेस को समझ गए ना, वो नेविगेट कर लेंगे. मैं इस साइड को छोड़ रहा हूँ. मैं इससे पिछले वाले डोर स्टेप की बात कर रहा हूँ. दैट लीड्स टू दिस रूम. वो डोर स्टेप ये है कि आपने जॉब्स क्रिएट करनी थी, आपके पास नहीं है. अच्छा, हो सकती भी है. क्यों? इसका जवाब मैं देता हूँ. इस मुल्क की आबादी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बंदा है इस मुल्क के अंदर, खलकत बहुत है जी. अब उसको आप सारों को तो नहीं ना आप लेके आ सकते मेन स्ट्रीम में, गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट वट एवर यू वांट कॉल इट. तो वहां पे गिग इकॉनमी इटसेल्फ हैड, इसमें किसी इंसान का कोई लेना देना नहीं है. मैं हर जगह जाके एक बात बोलता हूं, ये अगर हम ना बात करते ना, खुदा यकीन करे खुद ब खुद लोगों ने सर्च कर लेना था. कुछ ना कुछ तो करना ही, ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो करना था. कुछ ना कुछ तो करना था ना. मैं ऐसे टू मेक एंड्स मीट, ये होना था, ये प्रोसेस था. इस प्रोसेस से एक चीज तो फायदा हुआ कि अगर 3 बिलियन पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स हिस्ट्री में पहली दफा हिट किए, तो आपको एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है कि इस 3 बिलियन को हाउ कैन वी एलिवेट इट टू 10 million, 10 billion, and then get to the 100 billion. The moment you get to 100 billion, आज, कल, परसों, दहाई, 2 दहाई, all of a sudden there is economic prosperity in the country. That's it. तो वो जो सीड वो किया गया है, जो बैम्बू ट्री का एक आपने बीज बोया है, it takes 6 weeks to strengthen its root underneath the soil. Nobody sees the progress. Exactly. ये bamboo tree का, क्योंकि आपने लफ्ज़ bamboo tree use किया, and I knew understand कि nobody can see the progress because it is underneath the soil. क्योंकि सामने आता. But the moment it comes out of soil, it takes another 6 weeks and it grows exponentially yes, tall. It does. This is what the process is. This is what the evolution is. Linear approach versus an organic approach demand करती है कि ऑर्गेनिक अप्रोच में यू विल हैव टू बी पेशेंट इनफ. तो आज स्किल अपराइजिंग हो रही है, कल कम्युनिटी बिल्डिंग, स्केलिंग अप, फॉर्मिंग कंपनीज, स्टार्टअप इनिशिएटिव्स, एंटरप्रेन्योरशिप. All of a sudden you have laid down a foundation. That's about it. That's what your neighbor did in 1970s where you were sleeping. मेरा तो काम नहीं था ना, गवर्नमेंट का काम था ना. अभी भी मैंने कुछ नहीं किया. मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये ऑर्गेनिक था जो होना ही बना था. और इसके आफ्टर इफेक्ट्स अल्लाह मुझे दिखाए जी. इसके आफ्टर इफेक्ट्स मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ एक दहाई कह रहा हूँ. नेक्स्ट 10 years मुझे लगता है ये जो 64% है ना जो जिसके लिए आप चैनल चलाते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है. तो ये सब स्ट्रेंथ है, बट यू नीड टू यूटिलाइज देम एज वेल. बट यही कोशिश की ना वो दैट इज वेयर वी प्लग इन. I think I would likely to come to the end of it, but जो कुछ चीजें हैं there, अब वो आपके सिर्फ पर्सनल पे हैं कि there's definitely going to be a few quotes
which you have been following, or some philosophies you have been following in life? Nation building requires nation to come under one roof. Our problems are man-made, so therefore they have to be solved by the man themselves. I put my case to rest here. People like me और people like the अभी तक जो बहुत काफ़ी इस सिनेरियो से अपने आप को कोशिश कर रहे हैं गुजार सकें, and they still have not been able to work on. They still have not been able to navigate themselves, or somehow called lost at the sea. So how exactly or what exactly would be your small message to them, like Jack Sparrow? Two seas coupled up by one sea that stays on the top of it. Top of it? Yeah. Denzel Washington says, without commitment you cannot start. Without consistency you cannot finish. And the third seed that stays on the top as an umbrella is curiosity. I think that's... just the call you दुनिया हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, थोड़ा सा तो सोचो भाई, क्यों जो है ना वो रोबोट्स की तरह जिंदगी गुजार रहे हो, where machines are learning and humans are getting hooked. क्यों ऐसे हो गए हो? मतलब मैं देखता हूँ बाहर आगे पीछे मेरा स्क्रीन टाइम 3.5 घंटे, आपको क्यों लगता है कि मैं ये सारे काम खुद कर रहा हूँ? So the process is, आज सुबह मैं फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी था, and one of the lady from the business hub, she asked a very good question that pivoted around a very simple scaling up problem. How can I'm facing a lot of problems in scaling up my business because मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें कर ली हैं लेकिन I am not getting the results I deserve. There's a fine line between what you deserve and what you're doing. What you're doing is you're getting into the micromanagement because you clearly said I've tried everything and it hasn't worked. What you deserve is the moment you put people to work and you give them a complete responsibility. What humans can do is extraordinary. I'm going to repeat myself here. What humans can do is extraordinary. What humans do is pretty much disappointing. I would end at this point because I think इससे ज़्यादा mic drop moment इस time पे नहीं हो सकता इस podcast के अंदर. Thank you so much for gracing us with the time. It was lovely having such a improvised conversation with you. Honestly, it was a pleasure, and I got to learn quite a lot. Honestly, I got to learn quite a lot, and thank you again. Likewise, and it's an honor to be on the show. Thank you so much, sir.